سازش پاکستان کے خلاف پکڑا ہے. عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے، نشانہ پاکستان کا میسائل ٹیکنالوجی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب تک موجود ہے ہم نہ اپنا اٹامک طاقت پہ سودا کرنے دیں گے اور نہ ہی شہید بی بی کی میسائل پروگرام پہ. عالمی سازش پاکستان کے خلاف بک رہی ہے. بانی پی ٹی آئی صرف بہانہ ہے، میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اسرائیلی حکومت کے حق میں بولتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے خود کو کلیئر کرنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ایٹم بم کسی اسلامی ملک کے پاس نہ ہو. حال ہی میں امریکہ نے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائی ہیں. جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے ایٹم بم پر سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے. مختلف ملکوں کی جانب سے ہماری اندرونی سیاست پر بیانات آ رہے ہیں. بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر اجتماع سے خطاب. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں. حکومت کے پاس اتفاق رائے سے فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود ہے. اتفاق رائے سے کیے جانے والے فیصلے ہی مضبوط ہوتے ہیں. حکومت کی کینال کی پالیسی پر ہمیں سخت اعتراض ہے. حکومت کی کینال سے متعلق پالیسی ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اس طریقے سے حکومتیں نہیں چلتی. پی بی چیئرمین کی تنبیہ. سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور اگر جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی کسی صورت بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے. ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. پاکستان کی سالمیت کے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان. افغانستان کو کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. دہشت گردوں کی سرحد پار سے پالیسی نہیں چل سکتی. کالعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے. بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں. دہشت گردوں کا قلع کما کریں گے. خواہش ہے افغانستان سے تعلقات بہتر ہوں. شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا بے نظیر بھٹو شہید کے جمہوریت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں. ان کی شہادت ناقابل تلافی نقصان ہے. وفاقی حکومت نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار میں ادویات پہنچائیں. بیمار لوگوں کو علاج کے لیے اسلام آباد منتقل کیا گیا. افغانستان خارجیوں دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دیں. آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے. افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں؟ پاکستان اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا. افغانستان کی خود مختاری کا مکمل احترام ہے. افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار اہم رہا. افغانستان کی سرزمین سے فتنۃ الخوارج کے دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. دہشت گردی واقعات کے تانے بانے افغانستان میں موجود پناہ گاہوں تک جاتے ہیں. افغان عبوری حکومت سے براہ راست اور دوست ممالک کے ذریعے بات چیت جاری ہے. 8 لاکھ غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپس بھیجا جا چکا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس. کہا کہ خطے میں بھارت کے ناپاک عزائم سے آگاہ ہیں. بھارت خطے میں جو منصوبہ بندی کر رہا ہے اس سے بخوبی واقف ہیں. بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا بھی ادراک ہے. بلوچستان میں دہشت گردوں کا جھوٹا بیانیہ چاک ہو چکا. اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ایکسپوز ہو چکے ہیں. نومئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک سزاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا. نومئی کے پیچھے ایک مربوط منصوبہ بندی تھی. آئین و قانونی تقاضوں کے مطابق نومئی کے مجرموں کو سزا دینے کا عمل مکمل ہو چکا. 26 نومبر 2024 کی سازش نومئی 2023 کا تسلسل ہے. نومبر کی سازش کے پیچھے سیاسی دہشت گردی کی سوچ ہے. یہ سیاسی احتجاج نہیں، سیاسی دہشت گردی ہے. نومئی افواج پاکستان کے نہیں عوام کا مقدمہ ہے. سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کوئی جتھا یا مسلح گروہ اپنی مرضی یا سوچ معاشرے پر مسلط نہیں کر سکتا. سیاست اور اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے بیانیہ بنایا گیا حملے ایجنسیوں نے کرائے. انتشاریوں کو خوش ہونا چاہیے. ایجنسیوں کے لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں.
पाक फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह और गैर मुबहम है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई, मुस्तकबिल में भी ऐसी सजाएं दी जाएंगी। मिलिट्री कोर्ट्स पर बात करने वाले माजी में इसके हक में थे। फैज़ हमीद केस हसास मामला है, तबसरों से गुरेज करें। जो ऑफिसर सियासत को रियासत से ऊपर रखेगा उसे जवाब देना होगा, DG ISPR। सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइंद हैं, मगर ये सियासी जमातों ने ही करने हैं। सियासी जमातों को चाहिए मसाइल इंतशारी सियासत के बजाय बातचीत से हल करें। अफवाज पाकिस्तान का हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां और लीडर्स काबिल एहतराम हैं। अगर कोई फरीक अपनी मर्जी मुसल्लत पर तुला हुआ है तो उससे क्या बात करें। एक शख्सियत जो अपनी गलती से सीखने से आ रही थी, उसकी गलती की कीमत कौम ने खून से अदा की। 2021 में जिन दहशत गर्दों की कमर टूट चुकी थी उन्हें बातचीत के जरिए आबाद कराया गया। किसके फैसले से फितनतुल खवारिज को वापसी का रास्ता दिया गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ पक रही है। बानी PTI सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। ये वही लोग हैं जो इसराइली हुकूमत के हक में बोलते हैं। बानी PTI को इस हवाले से खुद को क्लियर करना चाहिए। वो चाहते हैं एटम बम किसी इस्लामी मुल्क के पास ना हो। हाल ही में अमेरिका ने मिसाइल पर पाबंदी लगाई। जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है एटम बम पर समझौता नहीं करने देंगे। मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से हमारी अंदरूनी सियासत पर बयानात आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर इज्तिमा से खिताब। हुकूमत के पास यकतरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं, हुकूमत के पास इत्तफाक राय से फैसले करने का मैंडेट मौजूद है। इत्तफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत होते हैं। हुकूमत की केनाल की पॉलिसी पर हमें सख्त एतराज़ है। हुकूमत की केनाल से मुतालिक पॉलिसी हमारे मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। PP चेयरमैन की तनबीह। कोई सुपर पावर है तो खुदा भी एक पावर है। हम उस पर यकीन रखते हैं। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमने पाकिस्तान को बचाना है, अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं सबको देख लूँगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सूबों के जो हकूक हैं उन्हें मिलेंगे। ना पानी कहीं जाता है, ना गैस कहीं जाती है। हम पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल कर खुशखबरियाँ देंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल एक अदालती कत्ल था। हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब। देखिए, डील का लफ्ज़ बिल्कुल गलत है। मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी बात है हमारे सामने। हो सकता है किसी ने कोई बात की हो कि जी ऐसा मुमकिन है। ये कहना कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे डील ऑफ़र की गई है वो दुरुस्त नहीं है। देखते हैं ना बात कहाँ जाती है। तमाम मुज़ाकरात तो आप और मैं नहीं कर लेंगे ना। जी। बात जब होती है तो बातों में से बात निकलती है। हम देखेंगे बात कहाँ जाती है। और हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, हम अपने उसूली मौक़िफ़ से तो नहीं हटेंगे, लेकिन कोई गुंजाइश किस तरह पैदा की जाती है वो देखा जाएगा। मुज़ाकरात में संजीदगी हुई तो हुकूमत को तस्लीम करने की गुंजाइश निकाली जा सकती है। मुज़ाकरात ठीक समत में चले तो 31 जनवरी की डेडलाइन बढ़ सकती है। बानी PTI को बनी गाला हाउस अरेस्ट या पेशावर भेजने की कोई डील ऑफर नहीं हुई। ये सब बातें हवा में की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी PTI डील लेने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ है, डील मिलेगी ना ही ढील। ये सब शोर मचा रही है, इसीलिए मचाया जा रहा है कि डील मिल जाए। मुज़ाकराती कमेटी में बैठकर PTI ने हुकूमत और पार्लिमान को तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुतालबात में 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं। मुशीर वज़ारत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक। हुकूमत का तो दो टोक मौक़िफ़ है, ना कोई डील है ना कोई ढील है। ना कोई डील ऑफर हुई है और ना ही हम कोई डील ऑफर करेंगे। पूरी पार्लियामेंट के ऊपर जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल है या मोहर जो लगाई है वो इस मुज़ाकराती टेबल पे बैठ के PTI वालों ने लगा दी। ये कहते थे डील नहीं करनी इनसे, हमने बात नहीं करनी इनसे, इनके साथ क्यों मामलात बात करें। 47 की एलिजिडली हुकूमत है तो अब बैठ तो गए। यानी अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने आपके 8 फरवरी के मैंडेट को तस्लीम कर लिया है, वो मसला अब खत्म हो गया है, वो इशू ही नहीं है अब। बिल्कुल, देखें अगर इशू होता तो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स में भी जो ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल उसमें वाज़ेह तौर पे उसका जिक्र करते, लेकिन उसका जिक्र नहीं है।
वफाकी कबीना ने मदारिस समेत 2 सदारती ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी। कबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। कार्बन मार्केट में तिजारत के हवाले से पॉलिसी गाइडलाइंस की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्रिब्यूनल का इजाफी इख्तियार तफवीज़ करने की मंजूरी। ज़रिए जनाज़ पर अहम फैसलों के लिए खुसूसी कबीना कमेटी तश्कील। 8 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म करेंगे। इसहाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, एहसन इकबाल शामिल। गंदम, चावल, कपास, गन्ना और खुर्दनी तेल, मक्की की पैदावार के तखमीनों का जायजा लिया जाएगा। फसलों का मुनासिब ज़ेर-ए-काश रकबा यकीन बनाने के लिए कौमी सतह पर मुशावरत की जाएगी। पैदावार बढ़ाने के लिए वफाकी और सूबाई ज़री तहकीकाती सिस्टम मरबूत किया जाएगा। हुकूमत इंसानी स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तग़ासा के अमल को मज़ीद मुअस्सर बनाया जाए। इंसानी स्मगलिंग में सहूलतकार सरकारी अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वज़ीर आज़म का इस्तफ़सार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब से मुतालिक जायज़ा इजलास। यूनान कश्ती हादसे की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म की एक हफ्ते में इंसानी स्मगलिंग के मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को हिरासत में लेने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म का घरेलू सार्फिन को गैस सप्लाई में कमी की शिकायत पर नोटिस। मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातिल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गैस सप्लाई से मुतालिक जायज़ा इजलास। घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की सिस्टम की साख्त में इस्लाहियत लाने की भी हिदायत। कुरम के शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। कोशिश है कुरम की आवाम को दरपेश मसाइल जल्द हल हों। उम्मीद है कि जल्द कुरम के मसले का पुरअमन हल निकल आएगा। फ्रेकैन और इमायदीन इलाका के अमन की खातिर सूबाई हुकूमत का साथ दें। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और माल व अमान का अमन व अमान का क़याम अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान। KP हुकूमत का कुरम का ज़मीनी रास्ता खोलने तक हेलीकॉप्टर सर्विस जारी रखने का फैसला। हेलीकॉप्टर से 613 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने नए स्कूलों के रजिस्ट्रेशन को स्कूल बसों की पॉलिसी के साथ मशरूत कर दिया। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ? स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसों को लाजमी करार दें। नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बंद करें। हर स्कूल को ये पॉलिसी बनाना होगी। स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 30 दिसंबर तक इस हवाले से पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म।